the police has recovered and what is the angle that they're probing. Meanwhile, shifting focus to more updates, the All India Muslim Personal Law Board has staged a massive protest at the Jantar Mantar in the national capital against the Waqf Amendment Bill 2024. The board demanded the withdrawal of the bill, which it believes threatens the protection of Waqf properties. Meanwhile, government leaders have, however, stated that the country will operate according to the law, with the Waqf bill expected to be presented in the parliament during the second half of the current budget session, which is on. My colleague Mehndi Garg with us on the broadcast. Mehndi, we've seen the slugfest over the Waqf bill for quite a while now. There was a JPC in between. There were deliberations that had taken place over there. The report was tabled as well. And now, of course, the AIMPLB once again staging a protest, this time at the Jantar Mantar. Well, yes, right now we are at Jantar Mantar and you can see that, all the leaders who were there in the protest are coming out, as now the protest has been ended, but it was a major protest where all the opposition leaders, mostly opposition leaders, came, and not only them, also, the leaders from AIMIM, Asaduddin Owaisi was also here, and all the Muslim communities and the Sangatans were protesting against the Waqf Bill 2024, and you can see the visuals that the leaders are coming outside. Pappu Yadav is here. We'll try to talk to him as well. All the leaders are coming outside and we'll try to have their statements as well. You can see, and it was a big protest that happened at Jantar Mantar today, because people were saying that it is a Kala Kanun and the government should revoke this bill that will be discussed in the parliament as well. Visuals we are showing you from the Jantar Mantar right now, where people are coming, where the leaders are coming outside of the protest. सर, वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ इस प्रदर्शन में भी डिस्कस हुआ है? देखिए, प्रदर्शन में आज हुआ और इसमें समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है और लोकसभा के अंदर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिल का विरोध किया। हम लोगों की यही मांग है कि आने वाले समय में ये बिल कहीं ना कहीं एक समाज को पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने अपनी आस्था को दिखाते हुए दी थी कि उनके समाज के लोग आगे बढ़ सकेंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ भी धोखा, उनके साथ भी ये गलत होने के बाद। All right, Mehndi. Of course, we've got a perspective from the Samajwadi Party there as well. It seems that your connection is glitching out. We'll try to get that sorted. Meanwhile, several of my colleagues have had exclusive conversations with other leaders as well. Let's take a look at what other parliamentarians have had to say. सर, एक सवाल सर, वक्फ बिल के प्रोटेस्ट को लेकर के आज देश भर में मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारत का संविधान, भारत जो है संविधान के अनुसार चलेगा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से संविधान नहीं चलेगा। वे अपनी संस्था चलाएं। शाहीन बाग में धरने पर बैठे थे। ये कहा जा रहा है कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे तो उस शाहीन बाग के उसके अंदर मुस्लिम लोग ही थे, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति टोपी पहनकर चला गया हो तो मैं कह नहीं सकता। उस शाहीन बाग की जो रिपोर्ट है, एक शाहीन बाग की अनेक मुस्लिम जो बहनें थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उस धरने का उन्होंने इतना बेवजह उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, उनको सोचना चाहिए। योगेंद्र चतुलिया जी, जिनका कहना है कि शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई थी, अगर वो शाहीन बाग बनाना चाहते तो इसका मतलब क्या है? संजय शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सलमान खुर्शीद जी। सर, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या कुछ मांगे हैं वक्फ बिल को लेकर? वक्फ बिल अनसैटिस्फैक्टरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसमें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं वो निकालनी चाहिए। और सर, जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ये जो वक्फ बिल है ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है। पार्लियामेंट में डिस्कस होने दीजिए। और सर, क्या एक तो ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ वक्फ के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हैं। जगदम्बिका पाल जी, आज और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको आपने मीटिंग में बुलाया, लेकिन आज वो प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या वजह है कि उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? आप ये सवाल उनसे पूछिए, कोई वजह नहीं है। ये केवल लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। रिपोर्ट हमने क्लॉज बाई क्लॉज अडॉप्ट किया 428 पे। जो डिसेंट नोट है ओवैसी साहब का या अब्दुल्ला का या संजय सिंह का, कल्याण बनर्जी का, राजा का, उसको भी हमने
लगाया है, नोट ऑफ डिसेंट भी। तो अब इसके बाद भी ये विरोध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं। तो आखिर इसमें आज सरकार अगर लेकर के जिस समय कानून आई थी अमेंडमेंट, उस समय इन लोगों ने कहा कि साहब बहुत जल्दी मिलाया गया, बिना स्टेक होल्डर्स के डिस्कस के साथ किया जा रहा है। तो इस तरीके से उस समय सरकार ने ही फिर पहल किया कि साहब हम स्टेक होल्डर से पूरे देश में डिस्कस करना चाहते हैं, जेपीसी गठित कर दिए। किरण रिजिजू जी ने प्रस्ताव किया, स्पीकर साहब ने 6 महीने का समय मिल गया और उसके बाद हम पूरे देश में गए, देश के सभी राज्यों से हमने बातचीत की और आपने देखा 38 बैठकें यहाँ की 118 है। लेकिन आज ये जो विपक्ष है या जिस तरह से कुछ मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करना चाहते हैं। एक बेहतर कानून आ रहा जो वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा। अभी तक वक्फ को खुद मुँह तोड़ कर 40,000 मुकदमे पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अब तक कोई नहीं जा सकता है। अगर इसकी बेहतरी के लिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं तो ये एक बेहतर। ये कह रहे हैं वो सर आखिरी सवाल, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की ज़मीन हड़पने की कोशिश है। ये गुमराह यही कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं कि अगर 1 इंच भी कोई कब्रिस्तान या ईदगाह ली जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूं, नहीं तो वो इस्तीफा। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और